दोस्तों, कैसे हैं सब? होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। अदीना, हाँ, मैं जागी हूँ। अरे अदीना, शो शुरू हो चुका है। कौन सा शो? कैसा शो? ये भूल गई। दर्शकों, ये ना ऐसी ही है, सो जाती है। इसे ना भूलने की भी आदत है। अब मुझे फिर से बताना होगा। अदीना, हम शो पर है, दूरदर्शन ओ के। हाँ, याद आया। योग्य शिक्षक नई शिक्षा। यस हाँ, तो स्वागत करते हैं हमारे दर्शकों का आज के इस एपिसोड में। यस। तो ये बता कि आज हम कहाँ चलेंगे घूमने? अच्छा अदीना, हाँ, तू पहले दोस्तों को बता, कल तुझे जो मैं लेकर गया था ना इतने सारे स्कूल्स में, हाँ, वो कैसे लगा? एकदम मस्त, एकदम टॉप मोस्ट क्लास। और तुझे पता है, ये सारे स्कूल में जाके जाके मुझे तो एकदम मजा आया। और मुझे पता चला कि मुझे डांस, गाना, फिर और भी बहुत सारे टैलेंट्स मेरे अंदर छुपे हुए हैं। तो और टैलेंट तुझे टैलेंट क्या आता है? टैलेंट तो मेरे अंदर भी है, कौन सा टैलेंट है? हर तरह के। मैंने तो कभी नहीं देखा तेरे अंदर कोई टैलेंट। तू तो एकदम जीरो है, जीरो। मैं नहीं, तू जीरो है। तू जीरो है। तू जीरो है। तू जीरो। तू। मुझे सब कुछ आता है, तुझे कुछ नहीं आता। तू जीरो। अच्छा, मैं जीरो हूँ। हाँ, अच्छा, मैं मानता हूँ मैं जीरो हूँ। हाँ, देखो दर्शकों, मान लिया ये जीरो है। ठीक है, लेकिन हाँ, सुन ले क्या? ध्यान से। क्या? अभी मैं तुझे अपने स्कूल लेके जाऊंगा, हाँ, और वहां से आने के बाद हाँ, तू ये नहीं बोलना कि मैं जीरो हूँ। क्या कह रहा है तू? मैं जीरो हूँ, मैं मान रहा हूँ। हाँ, मेरे स्कूल से आने के बाद हाँ, मैं ही जीरो रहूंगा, तू नहीं। हाँ, ठीक है, मैं वैसे भी जीरो नहीं। तो चल। तो चले। हाँ, चले। कहाँ? कौन से स्कूल? 11 चरमा। ठीक है, चलो चलते हैं 11 चरमा स्कूल, ये ओके। साबित करने के लिए कि तू ही जीरो है। जीरो को जहाँ भी तोड़ेंगे उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। Hello, good morning. My name is number 3. My value is 3. Hello. Good morning. Good morning. My name is number 4. My value is 4. Hello. Good morning. Good morning. My name is number 5. My value is 5. Zero has no value. Zero has no value. Hello numbers. Hello, sir. Good morning. Good morning, sir. How are all of you? We are fine, thank you. How are you, sir? I am also fine. Thank you. All of you are here, but where is zero? Let's find. Where is Where is zero? Where is zero? Wait. Someone is crying. Let's search. Okay. Just. Oh, zero is hiding here. Zero, what happened to you? Why are you crying? Sorry, sir, I will not come. Why? Come. I am with you. Come out. Come out. Sir, I will not come. Why? Come here. I am with you. Come. Okay, sir. What happened to you? Why are you crying? The other numbers are laughing at me. Oh, don't worry. I am with you. Come. Okay, sir. Zero has no value. Zero has no value. Why are you laughing? Laughing is very good, but laughing at someone is very bad. Okay? Don't say sorry to me. Say sorry to zero. Sorry, zero. Now our friends. We are friends. We are friends. We are friends. We are friends. Okay. Today I will tell you about the magic of zero. You like to know the magic of zero? Yes, sir. Just now you told that zero is very less, but zero is not valueless. Okay? Zero is not valueless. Come forward. What is your name? What is your name? My name is number 4. My value is 4. If zero is alone, then he has no value. But if zero stand next to any number, it increase the value of that number.
ठीक है. Okay. Now what is the value of 4? 40. So 0 increase the value of 4 as 40. So 0 is 0 or hero? Oh, 0 increase the value of 4. Yes, very good. So is he hero? Yes. Yes, 0 are you? You are hero. You are hero. Oh, yes, I am hero. Okay. 4, go to your place. 3, come here. What is your name? My name is number 3. My value is 3. And now, if 0 stand next to you, 0 will increase the value of number 3. Can you read? Now, what is the number? 30. So, 0 increase the value of number 3 as 30. Isn't it? Oh, 0 has increased the value of number 3. So 0 is hero. Oh, yes, I am hero. Come, 3, go to your place. Now, number 5, come here. Say your name. My name is number 5. My value is 5. As you said, your value is 5. Okay. If 0 stand next to you, 0 will increase the value of your number. That is number 5. Isn't it? So come near 0. Now tell me what is the value of number 5. 50. Isn't it? So 0 is 0. He increased the value of number 5 as 5 to 50. Isn't it? So 0 is, yes, come on. Oh, 0 increased the value number 5. 0 Is hero. 0 is hero. 0 is hero. Come on. 0 is hero. गणित जैसे कठिन विषय को भी रोचक बनाने के लिए पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाराचरमा के शिक्षक श्री जत्रू बरेक का मानना है रोल प्ले विधि ही एकमात्र ऐसी विधि है जो न केवल बच्चों में गणितीय ज्ञान को बढ़ाती है बल्कि उनकी भाषा कौशल को भी बेहतर बनाती है. मेरा नाम जत्रू बड़ाइक है. मैं पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाराचरमा प्राइमरी सेक्शन में एज ए पीएचडी कार्यरत हूँ. आज मैंने दूसरी क्लास के बच्चों को रोल प्ले के माध्यम से मैजिक ऑफ ज़ीरो के बारे में बताने का प्रयास किया. पहले हम नॉर्मली ब्लैक बोर्ड में समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन मैंने पाया कि मात्र ब्लैक बोर्ड में कोई चीज़ सिखाने से, स्पेशली मैथ्स को ब्लैक बोर्ड में अगर सिखाएं तो बच्चों में कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है, बच्चे अच्छी तरह से नहीं सीख पाते हैं. हमने पाया कि बच्चे खेल खेल में अच्छी तरह से सीखते हैं. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को एक रोल प्ले के माध्यम से जीरो के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाए. इसलिए मैंने यह प्रयास किया और मैंने पाया कि बच्चों ने इसमें बहुत रुचि दिखाई और उनमें कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ. और मैंने यह भी पाया कि जो बच्चे स्लो लर्नर थे उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया और कॉन्सेप्ट को समझा. इसलिए मैं समझता हूँ कि बच्चों को खेल खेल में और गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना चाहिए और जहाँ पर ज़रूरत हो रोल प्ले का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि रोल प्ले में मात्र कॉन्सेप्ट ही डेवलप नहीं होता बल्कि इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है. आपका स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल और जो समझने का जो स्किल है वो भी डेवलप होता है. इसलिए हमें मैथमेटिक्स में प्लेवे मेथड, एक्टिविटी मेथड के साथ साथ रोल प्ले मेथड ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इफ़ेक्टिव हो और बच्चे एक अच्छा नागरिक बन सके और आगे क्लास के लिए तैयार हो सकें. बच्चे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ब्लैक बोर्ड शिक्षण से गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर परिवर्तन ने उन्हें गणित को अधिक प्रभावी और रोचक ढंग से सीखने में मदद की है. माय नेम इज़ मौसमी मंडल. सर ने आज हमें एक एक्टिविटी सिखाया. वो एक्टिविटी में हमने बहुत कुछ सीखा. हम लोग पहले ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे, अभी सर हमें एक्टिविटी में बताता. एक्टिविटी में सब कुछ समझ में आता.
ज़ीरो का वैल्यू होता है। कोई भी नंबर कम नहीं होता है, इक्वली होता है। ज़ीरो का हम लोग कोई भी नंबर के बगल ला दिए तो वो नंबर को वो बढ़ा देता है। पहले मेरा सब लोग अंडरस्टैंड करते थे, अभी सब लोग मेरा वैल्यू बढ़ाए। क्या हुआ आपको? जीरो तो वैल्यूलेस आप लोग बोले, फिर कैसे मार दिया? कैसे मार दिया? जीरो आपको सबने प्यार किया, जीरो बोला, फिर आपने हीरोगिरी लात मार के दिखाया। से सॉरी टू हर, से सॉरी टू नंबर 4। सॉरी। अब बता, मैं जीरो हूँ कि तू? मैं ज़ीरो हूँ। अच्छा, मैंने कहा था ना स्कूल से आने के बाद तू बोलेगी कि मैं जीरो हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चल मान लेते कि हम दोनों ही ज़ीरो हैं। तो अब क्या करेंगे? अब मैं ये ज़ीरो वीरो देख के बहुत बोर हो गई हूँ, और नाच गाना तो कल हमने देख ही लिया था, योगा वोगा भी देख लिया। अब मुझे कुछ मज़ेदार करना है। चल जादू देखने चलते हैं। जादू? हाँ, कहीं कोई जादू या सर्कस या कुछ ना कुछ शो तो चल रहा होगा ना, हम चलते हैं, घूम के आते हैं। तो तुझे जादू देखना है? हाँ। तो चल, कहाँ? मैं तुझे ना जंगली घाट स्कूल ले चलता हूँ। अरे क्या बकवास कर रहा है? फिर स्कूल, मैं बोल रही हूँ जादू देखना है भाई। अरे हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। जंगली घाट स्कूल में एक मैम है, उमा। वो बच्चों को जादुई पिटारा से जादू दिखाते हुए पढ़ाती है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ, जादू का पिटारा। स्कूल में? यस, तो फिर जल्दी चलो, मुझे लेकर चलो जंगली घाट स्कूल। तभी तो कह रहा हूँ कि हमारे स्कूल में जादू भी दिखाया जाता है। ठीक है, समझ गई, तो जल्दी चलो ना भाई। तो चलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके लिए एक मैजिक स्टोरी बॉक्स लाई हूँ, और ये स्टोरी बॉक्स है बंद। इसको खोलने के लिए बोलना है ये जादुई मंत्र। भारत में शिक्षण पद्धति में आए परिवर्तनकारी बदलाव से सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक बच्चों को बिना समझे रटने से हटकर खेल आधारित, गतिविधि आधारित और रचनात्मक तरीकों से पढ़ा रहे हैं। अब शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं। श्री विजयपुरम के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जंगलीघाट के बच्चों के पास अब आ गया है उनका दोस्त प्यारा जादुई पिटारा। बंदम खोलम, जादुई बक्स से खुल जा तू, छू मंतर छू। नमस्कार, मैं हूँ कालिया सुंदरी। मेरा नाम कालिया सुंदरी है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ। बच्चों, क्या आप मुझसे कहानी सुनना चाहोगे? चलिए तो शुरू करते हैं। एक किसान था जिसके 2 मटके थे। वह रोज कुएं पर जाता और उस पर पानी भरकर ले आता। एक दिन वो जल्दी आ रहा था और उससे एक मटका टूट गया। टूटे हुए मटके से पानी बहने लगी। बच्चों, फिर क्या हुआ है पता है? आगे क्या होता है? दोनों मटकों को किसान रोज पानी भरने ले जाता है। एक दिन जो टूटा हुआ मटका उदास हो गया। वह सोचने लगा, मेरा जीवन व्यर्थ
मेहनत है। उसने किसान से कहा, मालिक मालिक, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं आपकी सारी मेहनत बेकार कर देता हूँ, सारा पानी बह जाता है, तो आप मुझे अपने साथ मत ले जाया करें। यह सुन किसान मुस्कुराया और फिर दोनों मटकों को अपने साथ ले गया। अरे, ये किसान तो मुझे पागल लगता है, फिर से मटकों को ले गया। मैडम, आप शांत रहे, आप कहानी आगे सुनिए। ओके, सॉरी। बच्चों, उसके बाद किसान ने जब पानी भरा मटकों को वापस लाते हुए मटकों से कहा, मटका देखो, रास्ते के तरफ देखो, आपको क्या नजर आ रहा है? मटके ने कहा, अरे यहाँ पर पेड़ पौधे हरे भरे हैं, फल फूल लगे हुए हैं। किसान मुस्कुराया, दोनों मटकों को घर ले आया और उसने कहा, देखो, तुम्हारे से जो पानी बहती है, उसी से ये पेड़ पौधे हरे भरे हैं, इसमें फल फूल लग रहे हैं, और जो पानी बाकी यहाँ बहता है, वो मेरे धनिये और पुदीने के पेड़ों को हरा भरा कर रहा है, जिसकी मैं स्वादिष्ट चटनी बनाकर खाता हूँ, और बरामदे में जो पानी फैल जाता है, उससे मैं बरामदा साफ कर लेता हूँ। बच्चों, ये कहानी तो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या आपने जाना? इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम सब में अपनी अपनी अलग विशेषता होती है। समझ गए बच्चों? इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हो रही है और वे एक आनंदमय वातावरण में अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों से सीख रहे हैं। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से केवल माता पिता ही चिंतित नहीं हैं, बल्कि अब शिक्षकों के लिए भी यह एक चिंता का विषय बन गया है। इसी विद्यालय की शिक्षिका उमा रॉय कठपुतलियों, खिलौनों एवं खेल विधि से बच्चों को पढ़ाई की ओर आकर्षित कर रही हैं। हम सब में अलग अलग विशेषता है, हमें खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इस कहानी से हम ये सीखे, हम किसी से कम नहीं, कि हमें किसी से भी कम नहीं समझना। हम लोग में भी ना एक एक गुण होता। मैं हमेशा ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाती हूँ, कुछ ना कुछ अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। मैं जैसे हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट से टैब दिया गया है, डिजिटल टीचिंग करती हूँ। आपको पता है कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें बच्चों को हमारी ओर ध्यान आकर्षित करना या इनका ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित करने के लिए यह पपट जो शो है, ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और पढ़ाई की ओर उनको ले आने में सक्षम होते हैं, जिससे उनका भाषा का कौशल का विकास होता है, श्रवण कौशल का विकास होता है और सांस्कृतिक विकास बच्चों का साथ साथ होता है। इसके द्वारा हम अपनी पौराणिक कथाओं को भी बच्चों को बहुत ही रुचिकर वे से सिखा पाते हैं। कि सरकारी विद्यालय के टीचर को हमारे शिक्षा के या हमारे सरकार के उच्च अधिकारी जो भी है वो हमें सशस्त्र बना रहे हैं। जैसे
सेना सशस्त्र होते हैं, उसी तरह टीचर अभी सशस्त्र है। उसके पास डिजिटल बोर्ड है, टैब है, सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। तो इस प्रकार हम टीचर और हमें इंडक्शन ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग जो हमारे सारे सरकारी टीचरों को दिया जाता है, जिससे कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। टीचर अगर टैलेंटेड होगा, उनका ट्रेनिंग होगा, तो बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सकेंगे। नई तकनीक, नई शिक्षा नीति सब हमारे टीचर को कैपेबल और सक्षम बना रहे हैं। मैं हमेशा इसमें विश्वास रखती हूँ, ऐसे पढ़ाई में विश्वास रखती हूँ, हर साल मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। और लर्निंग जो है बिना अपने हाथों से किए बच्चे नहीं सीखते। मैं ज़्यादा गणित विषय लेती हूँ। गणित विषय को मैं ऐसे प्रेजेंट करती हूँ बच्चों को कि वो करके उसका कॉन्सेप्ट समझे और उसको अपने जीवन में यानी लाइफ स्किल में उसको यूज़ कर सके। इस टेक्निक को मैं विशेषकर यूज़ करती हूँ। अदीना, हाँ बोल। कैसा लगा जादू? मजा आ गया जादू के पिटारे से। देखा, मैंने कहा था ना। हाँ तूने सही कहा था। तो चल अब दूसरे स्कूल ले चलता हूँ। तो चल कुछ तूफानी करते हैं। तूफानी? ये हाँ। तो आइडिया बहुत अच्छा है। मैं तो वैसे भी हवाई बन के आई हूँ, लेकिन ये तुझे क्या हो गया, नौकरी मिल गई क्या? नहीं तो मैं ना सबको, दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि हमें जो है हाँ। ट्रैफिक रूल्स को ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो अगर हम बच्चे सीखेंगे तो ही तो आगे जाकर कुछ कर पाएंगे। ये बात तो तूने सही कही। तो इसी बात पे मुझे बाइक में घुमाने ले चल। तूने हेलमेट लाया है? नहीं, मुझे क्यों हेलमेट चाहिए? तू ड्राइवर है, तेरे पास हेलमेट है, काफी नहीं है क्या? मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं देख क्या बन के घूम रहा हूँ। तू ट्रैफिक पुलिस लग रहा है। हाँ, तो ट्रैफिक पुलिस अगर खुद रूल तोड़ेगी तो बच्चे क्या सीखेंगे? अरे हमारे ट्रैफिक पुलिस तो कितने अच्छे हैं। देखा नहीं क्या प्रशासन ने कितने सारे नए नए रूल्स भी इम्प्लीमेंट किए, ई चालान ये वो, हर जगह पे ट्रैफिक पुलिस रहती है। तुझे किस बात का डर है? तो सिर्फ क्या पुलिस वाले ही अगर सब कुछ करेंगे तो हो जाएगा, एक्सीडेंट रुक जाएगा। हमें सीखना होगा और दोस्तों को भी सिखाना होगा। हाँ, ये बात तो सही कही कि ज़्यादा जिम्मेदारी तो हमारी ही है कि हम खुद को सेफ रखें और ड्राइव सेफ करें। तो चल। तो कहाँ चले? चल वहाँ दिखाता हूँ। स्कूल में टीचर ट्रैफिक रूल के बारे में बच्चों को नाटक के द्वारा कितने अच्छे से सिखा रहे हैं। तो मुझे वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी? हाँ हाँ। तो किस स्कूल में चलते हैं? चल आरबीवी स्कूल में चलते हैं। ठीक है, बाइक में तो बिठाएगा नहीं, चल बस में ही चलते हैं। चल चलो। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी आम होती जा रही हैं। यहाँ की ज़रा सी लापरवाही वहाँ बहुत बड़ी तबाही में तब्दील हो सकती है। छोटे बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे अक्सर अनजाने में गलती कर बैठते हैं। सही समय पर दी गई शिक्षा उनके जीवन की रक्षा कर सकती है। Good morning. Today we are going to learn about traffic rule through activity. Stop! Why are you playing on the road? We can't play on the road. No, we should not play on the road. It's dangerous. Me and my friend will tell you about road safety rules. Come. 3 catch traffic signal and my friend will tell you with the board of traffic signal. Red light, what do you say? I say stop. Yellow light, what do you say? I say wait. Green light, what do you say? I say go. This is a zebra crossing. We should always crossing the road at zebra crossing. Look at the signal. A school ahead, we must go slow. Picture of railway crossing. We must stop, look right and then left and right again before crossing the road. This sign is ahead, we should slow down our vehicles. Look at the signal, it is on way. We must move on direction. Hey,
Stop! You should not use mobile phone while driving. Sorry, I will never use mobile phone while driving. Stop! You should always give sight to the ambulance to go. Beep, 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 beep. Thank you for teaching the traffic rule. I would say if you want accident-free India, you have to motivate everyone to follow the traffic rule. Thank you. Thank you for traffic rules about accidents. ये थे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रविंद्र बांग्ला विद्यालय के होनहार बच्चे जो सड़क सुरक्षा के नियम मजेदार और शिक्षाप्रद तरीके से खुद भी सीखते हैं और अपने परिवारजनों एवं समाज को भी जागरूक बनाते हैं। यह विद्यालय पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक बांग्ला माध्यम होने के बावजूद अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं को भी समान महत्व देता है। यहाँ की प्रधान अध्यापिका जी का मानना है कि बच्चों का समग्र विकास के लिए शिक्षा, खेल और नैतिक मूल्यों का होना अति आवश्यक है। As we all know, the session is almost over, 24-25. And for the new session, our team of teachers, they are going on spreading the beauty, the peaceful environment of the school, the soothing nature and the comfortable environment with the rapport built with the teachers and the students. And with this motto, they go around all the catchment area, they spread their good things about the school and about the common language they teach in school and how they inculcate the habit of developing the students to a good citizen. They help the students to grow as a good citizen. This is my pre-primary class. Today we all have come here to introduce you with our children. Come, let's have a glance. Good morning, children. Good morning. Jai Hind. एक दौर हुआ करता था जब पूर्व प्राथमिक बच्चे स्कूल जाने से घबराते थे, पर आज वक्त काफी बदल गया है। आज उन्हें कक्षा में केवल एक शिक्षिका नहीं मिलती, बल्कि उनका स्वागत माँ जैसी ममता न्यौछावर करने वाली शख्सियत खुली बाहों से करती है। आज का सीखने का वातावरण रोचक और आकर्षक के साथ साथ सुरक्षित, आत्मविश्वासी और प्रेरित भी है। Gita, where are you? Today what you have in your breakfast? Nashta? Huh? Milk. Okay. How many of you have? Milk. What? Milk. Then chapati, roti? Roti? Raise your hand. Yes. Biscuit? Oh my God. Janvi, today you had biscuit? Oh, very good. I feel nice, happy. Teacher loves us. अभी जो सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट मुहिम चलाया जा रहा है, इसमें इनका मुख्य उद्देश्य है कि ये बच्चों को एक स्वच्छंद, सुरक्षित और सहयोगी वातावरण देकर उन्हें एक अच्छे नागरिक बनाने में सहायता करें। They go door to door. They spread the message of the school. They give the feedback how the school is important than how Rabindra Bangla Vidyalaya is so important and so effective in building a future citizen to the people around. In that case, for this purpose, for the enrollment, increase the enrollment drive, my teachers, my staff, everybody from pre-primary to class 12, everybody is so talented and effective, and they go to the people around, they spread the message to come and take admission in our school by giving them pamphlets, by giving them feedback of the school, by giving some of the teachers, they give them banner also, and parents, we invited the parents, we conducted meetings also with the parents, we interacted with the parents, we interacted with the other members, SMC members of the school, we interacted with the SMDC members of the school. अच्छा अदीना, बता बोल, कैसा लगा? मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। इतने सारे रूल्स और इतने इजीली सब बच्चों ने कैसे कैसे बता दिया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा। तो इस काम कर, तो इस स्कूल में एडमिशन ले ले। हाँ, कंसीडर तो कर सकते हैं। हाँ, तो देखा दोस्तों, आज हमने आपको लाइब्रेरी के बारे में,
ट्रैफिक रूल्स के बारे में और बर्थडे सेलिब्रेट। तो इस तरह से जो है हमारे सारे सरकारी स्कूल में कितनी अच्छी तरीके से रुचि के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात बोलूं? क्या? इस ट्रैफिक रूल्स के चक्कर में ना मुझे चक्कर आने लगे हैं, तो इसलिए अभी मैं घर जाना चाहती हूँ। तो ठीक है, दोस्तों को वादा तो कर। हाँ दोस्तों, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे कल फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे इसी शो में जिसका नाम है योग्य शिक्षक नई शिक्षा। लेकिन जाने से पहले तो भूल गया कुछ। क्या? हमें सवाल का जवाब और हमारे विजेता का नाम घोषित करना है। हाँ, तो आज का सवाल पूछते हैं पहले। ठीक है, तू पूछ ले। ना, तू पूछ। तू पूछ। तू। अरे अच्छा चल ठीक है, मैं ही पूछ लेती हूँ। तो दर्शकों, मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हमारा आज का सवाल ये है कि अंडमान और निकोबार में टोटल कितने स्कूल है सरकारी, यानी कि सरकारी विद्यालय कितने हैं टोटल? तो इस सवाल का जवाब आप हमें दीजिए और हमसे मिलने का मौका पाइए। मुझसे सुपरस्टार रदीना और सुपरस्टार